अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, जो दिलों में नूर ईमान पैदा करने वाला है। दिस इज़ ट्यूटोरियल लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर इंटर पार्ट 1 प्रेजेंटेड बाय हरुनाबाद साइंस कॉलेज। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस नासिर. This is my phone number. Let I mention over. This is my phone number. You can coordinate me at WhatsApp and at my Gmail account. This is my email, and I have mentioned the coordination timings from 2 p.m. to 5 p.m. This is the coordination timing. You can coordinate me for your questions and queries. I will answer you at 2 p.m. to 5 p.m. at WhatsApp groups. You should need to questions me in my inbox, not in WhatsApp group. We just inform you in your WhatsApp group for whole class अनाउंसमेंट. अगर हमें कुछ होल पूरी क्लास के लिए अनाउंसमेंट करनी हुई तो व्हाट्सएप ग्रुप में होगी, और फॉर इंडिविजुअल वी कैन कोऑर्डिनेट इन आवर व्हाट्सएप इनबॉक्स. सो our topic is complex number. We was studying about our first chapter, which is named as real and complex numbers. We was studied last lecture real numbers and the properties of real numbers. We do not have studied the properties, we just studied the numbers and the definition relating to them. So for the complex number, we stated a complex number. Let me describe you complex number. The complex number of the form z is equal to x plus iota is called complex numbers, where z is called a complex variable. Every complex number can be represented expressed by a z, which is variable representer of a complex number. I have complex number represent over here. Z is equal to x plus iota y. A complex number depends on two parts. One part is real part and second part is imaginary part. A part, let's say a part x is called real part because, and a part y is called imaginary part. The number associated with iota, this I is represented as iota. For example, this I is represented as iota. Iota is a complex number. We will studying about furthermore iota, but स्टिल वी आर स्टडिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, z उसका वेरिएबल होगा और इज इक्वल टू x प्लस वाई ओटा. फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 ओटा, 4 प्लस 5 ओटा, 5 माइनस 6 ओटा, 5/7 माइनस 2/3 iota. So x y are real number. X y could be any real number, but the number without any complex part iota is called real part, and the number with this complex part iota is called imaginary part. So a complex number depends on two parts. It has two parts, a real part and imaginary part, where x and y both are real numbers. So this is the definition. If you have any question, you can ask me in our discussion period. So the next is I have expressed some example. For example, let's z is equal to 4 plus 5 iota. So this is a complex number 4 plus 5 iota, where 4 is real part and 5 is its imaginary part, because 5 is represented with this iota. So a number presented with iota is called complex number. So a complex part or imaginary part. So this is a real complex number. Sorry, this is a complex number with both of parts, real and imaginary part, which are mentioned over here. So our second example is z is equal to 3. Actually 3 is a real number. There is no iota associated with this 3. हमें इस 3 के साथ कोई iota नज़र नहीं आ रहा. तो इस सूरत में हाल में ये सिर्फ और सिर्फ एक रियल नंबर है. लेकिन क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर का सेट सबसेट होता है होल नंबर का, और होल नंबर का सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर्स का सबसेट होता है रियल्स का, रैशनल्स का, और एक और सेट हमने पढ़ा था इरेशनल्स का.
ठीक है। रैशनल और इरेशनल दोनों सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के, और रियल नंबर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो कॉम्प्लेक्स नंबर, the set of complex number is bigger than the set of real number, so set of real number is a subset. So if by कंसीडरिंग द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, हम लोग अगर सबसेट की डेफिनेशन देखें, अगर ए बी का सबसेट है तो ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बी का हर एलिमेंट ए में मौजूद हो। बी में कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो ए में मौजूद ना हो, लेकिन ए के लिए ज़रूरी है कि इसका हर एलिमेंट बी में मौजूद हो, तभी ए बी का सबसेट बनेगा। सो एज all the real numbers are subset of complex numbers, so real number is a so every real number is also a complex number, but every complex number could not be real number. Some of them could be, but all of them are could not be real number. So every real number is a complex number. So I have represented z is equal to 3, a complex number with the real part is equal to 3 and imaginary part is equal to 0. So a number with 0 imaginary part will be called pure real number, pure real number. And I have explained, since iota is equal to square root of -1, and iota square will be iota square is equal to -1, and iota square will be -1. So if we're taking square on both sides, this implies that iota square will be -1. So this is the number. I have described a number z is equal to 2 times square root of -1. As we know that square root of -1 is iota, so we can replace z is equal to 2 iota, where real part is 0. We cannot see any number in this z without iota. We can only see a number with iota. So a number without iota is a real part which is not available in this z, so the real part will be 0, and the your number represented with this iota is called imaginary part, so imaginary part is 2. This is a number with only imaginary part, real part is 0, so this is called pure imaginary. Here we have described two types of imaginary numbers, actually three types of imaginary number. First one is pure real, second one is pure imaginary, and third one is general form of a complex number if z is equal to x plus y iota. यहाँ पर मैंने ये रिप्रेजेंट किया है, इफ़ z is pure real, if y is equal to 0, complex part is 0, z is pure imaginary if its real part is 0 and y is not equal to 0. So this was the discussion of this page. If you have any problem and question, you can question me at inbox. So here I have described graphical representation of complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन अ प्लेन विच इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन और गाजियन प्लेन. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो प्लेन का नाम है उसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन की बजाय या एक्स वाई प्लेन की बजाय हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे, या फिर आर्गन प्लेन कहेंगे, या फिर गाजियन प्लेन कहेंगे. ज़्यादातर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन कहते हैं. तो समटाइम्स वी कैन से दैट रिप्रेजेंट अ क्वेश्चन कैन बी अराइज दैट सम नंबर्स or the operation of some numbers represent in Gaussian plane. So you need to know that what is Gaussian plane. Gaussian plane is a complex number where we can define every complex number, so which is very much similar to the xy plane. This is nothing but xy plane. As we know that xy plane has two axes, perpendicular axes, which is x-axis and y-axis. Here y-axis is this axis and x-axis is this axis. So x-axis here called real axis, and y-axis here called imaginary axis. So a number which is a complex number, if we want to define a number 2, z is equal to 2 plus 3 iota,
or it can be write as in the form of ordered pair as 2 2 comma 3. So first part, you need to always know that first part is real part and second part is imaginary part. Here 2 would be real and 3 would be imaginary. We can write it as 2 plus 3 iota. So अब हम लोगों को इसे प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है. So as we know that first part is real part, so it can be located on real axis, and second part is imaginary part, it can be located over imaginary axis. First part is 2, so we will move on 2 units, and second part is 3, we will move on 3 units. So the number is this number. So 2 comma 3 is this number. If we want to locate a number 3 comma 2, then we need to move 3 units along our real axis and 2 units along our complex axis. So this is a point 3 comma 2. So that is the way to locate a complex number in the आर्गन प्लेन. सो आर्गन प्लेन में हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ दिस पेज. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कोऑर्डिनेट. नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. I have mentioned the some history about this topic. An Italian mathematician named as given represent complex numbers in 1545. He said that imaginary number is equal to he said that actually he fixed that something he called rule that square root of -1 is called iota. तो उन्होंने ये बताया था कि इस तरह की नोटेशन -1 के जज़र को हम लोग योटा का नाम दे सकते हैं. अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर. As we know that a complex number has two parts, real part and imaginary part, so it has the combination of real and imaginary. The, the pure real complex numbers are points lies on. अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ डिफ़ाइन करनी है कि यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास एक नंबर हम लोगों ने प्रेजेंट किया था जिसका दोनों पार्ट थे, रियल पार्ट भी मौजूद है और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट भी मौजूद है. बट दिस इज़ नॉट द सिचुएशन ओवर हेयर. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी की. सो प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी में हम लोग प्योर रियल एंड प्योर इमेजिनरी, अगर प्योर रियल है तो उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट ज़ीरो होगा. सो इफ़ द नंबर इज़ प्योर रियल देन इट could be lies on real axis, and if a number is only complex part then it is lies on complex axis, imaginary axis. So if a number is pure real like z is equal to 3, we have discussed previous. So 3 is a real number, only real number, so it can only be located over the real axis. And if a number is only 3 iota, then its real part is 0, then this number can be located over only this imaginary axis, y axis. So that was the discussion of this page. If you have any problem you can coordinate. Powers of iota. I have described a topic, very important topic relating to this. Our theory is powers of iota. I have mentioned some information over here in Urdu. You can easily learn this. We will move to our example. So our number is iota is equal to square root of -1, and if we're taking square on both sides then we can get this result, iota square is equal to -1. So I am discussing the powers of iota. So as we know that iota square is equal to -1, iota cube is equal to iota square dot iota, iota cube is equal to iota square dot iota. So we can write iota cube is equal to iota square dot iota, because as we know that if two numbers are in multiplication and both numbers have same base, then we can add the power. So 2
अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी बेस सेम है, जैसे यहाँ पर दोनों की बेस आयोटा है, तो हम लोग दोनों की पावरों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, 2 + 1 3 एंड हेयर इज इयोटा क्यूब। हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि इयोटा क्यूब को हम इयोटा स्क्वायर डॉट इयोटा लिख सकते हैं। पावर अगर हम लोग ऐड कर सकते हैं तो पावर बेस सेम करके तोड़ भी सकते हैं, ये रिजल्ट दोनों तरफ वर्क करता है। सो इयोटा स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं -1 के इक्वल है। इयोटा स्क्वायर जब -1 हम इधर रखेंगे, -1 जब मल्टीप्लाई करेंगे इयोटा से तो वो सिंपली माइनस इयोटा कर देगा। सो हम लोगों ने देखा इयोटा क्यूब वुड बी माइनस इयोटा एंड इयोटा रेज़्ड पावर 4। व्हाट अबाउट इयोटा 4 इज can be written as iota square dot iota square, and iota square is -1, so -1 into -1 will be +1, so iota raised to power 4 will be 1. so iota raised to power, यहाँ पर मैं एक डिफाइन करना चाह रहा हूँ रिज़ल्ट, वो ये रिज़ल्ट है कि अगर हम लोगों के पास इयोटा की कोई भी पावर आ रही है तो उसे इवेल्युएट करना कोई मुश्किल नहीं है। हम लोगों को उस पावर को सिर्फ 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत, कोई भी पावर ले लें, या जैसे यहाँ पर मैंने 9 पावर ली है, सो 9 को आप लोगों को 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत है। तो जो भी आपका रिमाइंडर बने उसे आपने इयोटा की पावर में लिख लेना है। हम लोगों ने देखा इयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस इयोटा, इयोटा 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस सूरत में हम लोग देखते हैं इयोटा रेज़्ड पावर 9, अगर 9 को हम लोग 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर विल बी 2, बिकॉज 2 4s are 8 and 9 minus 8 will be 1, remainder will be 1. So if we represent 1 in the power of iota, then it would be iota. So we can say that iota raised to power 9 is equal to iota. अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें तो iota की पावर 9 को हम लोग लिख सकते हैं iota raised to power 4 डॉट iota raised to power 4 डॉट iota, और iota raised to power 4 हम लोग जानते हैं 1 के इक्वल है, तो ये 1 डॉट iota फिर से iota मिल रहा है। तो हमें सिंपली करने की ज़रूरत है, जो भी पावर होगी उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर मैंने 26 पावर रखी हुई है, अब 26 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 20, 6 4 24, तो 24 26 में से 24 जाएंगे 2, तो इयोटा की पावर 2 अपने आप में -1 के इक्वल होता है। सो इयोटा की पावर 26 को भी हम लोगों ने इवेल्युएट कर लिया। इसके बाद मैंने एग्जांपल दी है इयोटा रेज़्ड पावर 96। इयोटा रेज़्ड पावर 96 को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हम लोग इयोटा की पावर में लिख देंगे। सो 96 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया तो ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। If we represent 0 in the power of iota, then it can be located as iota raised to power 0 0. So हम लोग जानते हैं अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो ये नंबर 1 के इक्वल होता है। So this is equal to 1. So here we have the result, we get the result iota raised to power 96 is equal to 1. So I have generalized this result for iota raised to power 4k. 4k अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली ये 4 से मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 0 रिमाइंडर बचेगा, और इस सूरत हाल में रिज़ल्ट हमारे पास 1 होगा। और अगर 4k + 1 से कर रहे हो तो 1 रिमाइंडर बचने पर इयोटा होगा, 2 रिमाइंडर बचने पर हमारे पास -1 होगा, 3 रिमाइंडर बचने पर माइनस इयोटा होगा। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इयोटा की पावर्स को 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर काउंट करने हैं। अगर रिमाइंडर हुआ 0 तो रिज़ल्ट होगा 1, अगर रिमाइंडर हुआ आपका 1 तो रिज़ल्ट होगा आपके पास इयोटा, अगर रिमाइंडर हुआ 2 तो रिज़ल्ट होगा -1, अगर रिमाइंडर हुआ 3 तो रिज़ल्ट होगा माइनस इयोटा। अगर इयोटा रेज़्ड पावर 0 हुआ, इयोटा की पावर 0 0, इयोटा की पावर 0 इज इक्वल टू 1, जिसकी भी नंबर की पावर 0 हो जाए वो 1। अगर इयोटा की पावर 0 होने की बजाय 1 है तो जिस नंबर की पावर 1 है तो 1 तो पावर होने से कोई इफेक्ट नहीं होता। हम लोग जानते हैं पावर का मतलब होता है, अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है एक्स डॉट एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई करना है, और कितनी दफ़ा करना है, 2 दफ़ा, जितनी पावर है, क्योंकि एक्स स्केल ले रहे हैं। अब 1 है तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है एक ही दफ़ा, तो वो वही रहेगा, इयोटा इज इक्वल टू इयोटा ही रहने वाला है हमारे पास। सो अगर इयोटा की पावर 2 है तो -1 रहेगा, 3 है तो
माइनस योटा रहेगा। हमारे पास 4 ही नंबर आ सकते हैं, या +1 या -1 या प्लस योटा या माइनस योटा। ठीक है, तो 5 होने पर रिमाइंडर 1 रहेगा, योटा मिलेगा। 6 होने पर रिमाइंडर 2 रहेगा, -1 रहेगा। 7 होने पर रिमाइंडर 3 मिलेगा, माइनस योटा होगा। 8 होने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा, 1 होगा। और 3 ही रिमाइंडर मिल सकते हैं, 0, 4 ही हो सकते हैं, 0, 1, 2 और 3। इससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। सो अगर आपको इस पेज में कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो यू कैन कोऑर्डिनेट. Now we'll move into our next page. I have described the algebra of complex number. Algebra of complex number stated as some algebraic properties, operations such as addition, multiplication, subtraction, and division. So, first of all, I have described addition. If z1 is a complex number and z2 is an other complex number, then addition of z1 z2 is a1 plus a2. Real part would be added to real part and complex part would be added to complex part. The real part is added to real part and imaginary part is added to imaginary part only. हम ऐसा नहीं कर सकते कि रियल को इमेजिनरी में ऐड कर दें या इमेजिनरी को रियल में ऐड कर दें। नहीं, रियल सिर्फ रियल से ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी सिर्फ इमेजिनरी से ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। तो वी हैव स्टडीड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सो which is very simple. If we have two numbers, say z is equal to 2 3 plus 2 iota, and this is z1 and this is z2 is another number which, let's say, this is equal to 4 minus 5 iota. If we want to add both, then real part will be added to real part and complex part will be added to complex part. 3 plus 4 would be 7, and let's say 7, and we are adding actually. 4 plus 3 is 7 and 2 minus 5 is equal to minus 3 iota. So this is the addition of z1 and z2. if we want to subtract, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो हम लोग जानते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर इनके सिंबल्स चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में 3 माइनस 4 माइनस 1 और 5 2 7 योटा बनेगा। सो दैट इज़ द वे added to real part and that part will be added to complex part. So we it says the product also. Multiplication is also says as product. So if z1 is a complex number and z2 is a complex number, then z1 is a complex number, z2 is a complex number, then the multiplication z1 z2 is represented over here. So जैसे जमा और तफरीक में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमारे पास तमीज़ थी कि हम लोग रियल में ऐड कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स में ऐड कर रहे थे। यहाँ पर कोई तमीज़ नहीं। यहाँ पर एक को पकड़ो सबसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे को पकड़ो सबसे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर कोई तमीज़ नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। यहाँ पर भी हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर लो तो रिजल्ट में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। सो दिस इज़ आल्सो द फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। सो कॉम्प्लेक्स नंबर use okay complex number use ordinary multiplication and division, do not obey rule like addition and subtraction. इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट की तमीज़ नहीं करेंगे। हम लोग रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम लोग इसमें ये नहीं देखेंगे, करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हर एक को हर एक के साथ। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट दोनों को कंसीडर करेंगे। देन आई हैव डिस्क्राइब्ड इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. Complex number doesn't satisfy inequality. It's meaningless. A plus iota b greater than
C प्लस योटा डी कैन नॉट बी। अब देखें यहाँ पर इनइक्वालिटी मैंने डिफ़ाइन की है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान। यहाँ पर हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक नंबर है, ठीक है, और a प्लस बी होता और c प्लस डी होता अपने आप में एक नंबर है। तो एक नंबर से कैसे बड़ा हो सकता है? वो भी एक नंबर, प्लेन के नंबर हैं, ये लाइन के तो नंबर हैं नहीं, जो या फासले तो हैं नहीं, ठीक है, जो छोटे बड़े होंगे, लेकिन ये तो नंबर हैं। तो इस सूरत हाल में ये एक दूसरे से कैसे बड़े हो सकते हैं, ये मीनिंगलेस है बात। तो चूँकि हम लोगों ने डिफ़ाइन किया कि योटा अपने आप में एक अनडिफाइंड टर्म है, योटा अनडिफाइंड टर्म है, कि नहीं पता किसके इक्वल है, अपने आप में अनडिफाइंड है। तो एक अनडिफाइंड चीज़ दूसरी अनडिफाइंड से कैसे छोटी बड़ी हो सकती है, ये हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बट in some papers, some of authors are described the inequality between two numbers if a1 comma b1 is a complex number which is less or equal to a2 comma b2, ठीक है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है या बराबर है किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तब सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि a1 छोटा होगा, बराबर होगा a2 से, ठीक है, और b1 अगर तो ये छोटा और बराबर होता है, छोटा होता है या बराबर होता, नहीं, बराबर की कंडीशन हम लोग नहीं दे सकते। अगर ये छोटा होता है तो हम लोग ये कह सकते हैं, लेकिन अगर ये बराबर है, ये छोटा नहीं है, बराबर है, पहला पार्ट मान लो कि दोनों का बराबर है, तो फिर हम लोग मूव करेंगे सेकंड पार्ट पर। अगर सेकंड पार्ट छोटा है दूसरे नंबर के सेकंड पार्ट से, तो फिर फर्स्ट नंबर छोटा होगा सेकंड नंबर से, ठीक है। तो इन सम पेपर्स दिस इज़ आल्सो डिस्क्राइब्ड लाइक दिस। So in our discussion we will not move into our inequalities. This is just for information. You can coordinate for any queries. यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया इक्वलिटी ऑफ टू नंबर कुड बी इक्वल if z1 is a number and z2 is a number. If both numbers are equal, then real part would be equal to real part and complex part would be equal to complex part. This is nothing but this case. यहाँ पर की पॉइंट है, if a square plus b square is equal to 0, then a and b are both 0. यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर रियल वर्ड में हम लोग देखें कि सिर्फ रियल की बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स की, अगर ए भी रियल है, बी भी रियल है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, तो फिर ए और बी दोनों के दोनों 0 होंगे। बट इफ़ z1 is a number and z2 is a number, then z1 square is given, z2 square is given, then z1 square plus z2 square is equal to 0 when z1 is not equal to 0 and z2 is not equal to 0. यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है कि रियल में हम लोग देखते हैं कि अगर दो नंबरों के स्केयर्स का सम 0 के इक्वल है, तो फिर दोनों के दोनों 0 होना लाजमी है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने एक नंबर लिया जो कि 0 नहीं है, एक दूसरा नंबर लिया 0 नहीं है, इन दोनों का हम लोगों ने स्केयर किया। हम लोग देख सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, सिमिलरली ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। हम लोग जानते हैं योटा स्केयर -1 होता है, -1 प्लस 1 कैंसल, -1 प्लस 1 कैंसल, यहाँ पर +2 योटा और -2 योटा ऐड होकर 0 हो जाएंगे। सो होल पार्ट इज 0, z1 स्केयर प्लस z2 स्केयर इज इक्वल टू 0, बट z1 एंड z2 बोथ आर नॉट इक्वल टू 0। सो कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करे, जबकि ये प्रॉपर्टी रियल में होल्ड करती है। सो दिस इज़ द की पॉइंट अलोंग आवर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. Our next key point is about our analysis is the
the combined sum of 4 powers of iota is equal to 0। अगर iota की लगातार 4 पावर्स का हम लोग सम लें तो वो 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट करता है iota रेज टू पावर 0 को। सो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो लगातार है, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। सो इन 4 पावरों का सम 0 के इक्वल है। सिमिलरली 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, लगातार 4 पावर हैं, इसका सम 0 के इक्वल है, सेटिस्फाई करता है। सो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, आप लोगों ने ऐड करना है iota रेज टू पावर आर वेरीज फ्रॉम 1 to 2006। मतलब कि आप लोगों ने ऐड करना है iota रेज टू पावर 1 प्लस iota रेज टू पावर 2 प्लस iota रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन प्लस iota रेज टू पावर 2006। यहाँ तक आप लोगों ने 2006 पावरों को ऐड करना है। तो सिंपली हम लोग करेंगे क्या, 2006 पावरों को ऐड करने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। हम लोगों ने iota की पावर 2006, इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 2006 तक हम लोगों ने ऐड करना है। हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबरों की पेयरिंग कर लेंगे। पहले 4 नंबर पेयर हो गए, फिर अगले 4 नंबर पेयर हो गए, फिर अगले 4 नंबर पेयर हो गए एंड सो ऑन, 4 नंबर पेयर हो गए। अब देखें 2004 पे मुकम्मल डिवाइड होता है, तो 2000 तक हो गए। उसके बाद 2000 तक हो गए, पावर्स कितनी रह गई, सिर्फ रिमाइंडर कितना रह गया, 6 में से भी पहले 4 आपके चले गए, सिर्फ 2 पावर्स रह गई, 2005 और 2006। अब 2005 पावर को हमें हल करने की ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने पावर ऑफ iota को कैसे इवेल्युएट करना है, 2005 पावर को हम लोगों ने इवेल्युएट करना है, जो कि 2005 में 2004 तक मुकम्मल 4 डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, वो पावर में हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पर 2006 में रिमाइंडर 2 बचेगा, iota की पावर 2 इज इक्वल टू -1, सो रिजल्ट इज iota -1। So this was the very much important key point. Next is conjugate of a complex number. So a complex number, if z is a complex number, z is equal to a plus b iota, and be a complex number, then its conjugate can be represented as a z bar. सो ये बार जी के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हमें ये बताता है कि ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट एक्सप्रेस कर रहे हैं। दिस इज़ द नोटेशन फॉर द एक्सप्रेस ऑफ कंजुगेट एंड इट चेंज ओनली सिंबल ऑफ इमेजिंग पार्ट। अगर ए जी इज इक्वल टू ए प्लस बी iota आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कंजुगेट हम लोग या स्टार से या जी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अपने आप में सिर्फ और सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो सिर्फ और सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन को चेंज कर देगा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन पॉजिटिव है और यहाँ पर साइन नेगेटिव है। सो ये से कंजुगेट में हम लोगों ने सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करना है और कुछ नहीं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनसे रिलेटेड, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कंजुगेट लिया जाए तो वो दोबारा इसके इक्वल होगा। अगर इसका दोबारा कंजुगेट लें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स का सिर्फ साइन ही चेंज करना है ना, तो ये तो वैसे ही रहेगा, इसका साइन फिर चेंज करोगे प्लस हो जाएगा, जो कि दोबारा हमारा जी बनने वाला है। सो दिस इज़ द थिंग। अब इसके बाद प्रॉपर्टी है, अगर कंजुगेट में हम लोग नंबर ऐड कर दें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 टाइम्स रियल पार्ट रहेगा। देखें अगर जी और जी कंजुगेट को ऐड करें तो माइनस iota b प्लस iota b कैंसिल होगा, a प्लस a 2a रहेगा, और 2 टाइम्स a अपने आप में रियल पार्ट है तो 2 टाइम्स रियल पार्ट रहेगा, और अगर माइनस करें तो 2 टाइम इमेजिन पार्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करो तो आप लोग मॉडुलस का स्क्वायर गेट कर सकते हो। मॉडुलस इज़ द लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेक्टर इन आर्गन प्लेन। इंशाल्लाह इस पर भी, बल्कि निचला आर्टिकल यही है मॉडुलस वाला, हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं कि मॉडुलस क्या है। अगर कंजुगेट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कोऑर्डिनेट। सो modulus of a complex number I have defined. So modulus of any complex number is its distance from origin. So अगर z for example this p is equal to x and y ordered pair, पॉइंट है एक जिसमें x एक डिस्टेंस है y एक डिस्टेंस है, x रियल
एक्सिस का डिस्टेंस है, वाई कॉम्प्लेक्स एक्सिस का डिस्टेंस है। पी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अगर पी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस पी का इस ओरिजिन तक का फासला इस पी का मॉडुलस कहलाएगा, जो कि हम लोग कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। इफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओटा, देन दिस इज कॉल्ड जी मॉडुलस विच इज इक्वल टू आर। सो आर कैन बी calculated by the Pythagorean theorem, as we can see that this is a right angle triangle, over right angle is here. सो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पैथागोरियन ला देता है कि हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस एल्टीट्यूड स्केयर। हाइपोटेनियस हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, और जिस एंगल को आप प्रायोरिटी दे रहे हो उसके अपोजिट साइड एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर होती है, और थर्ड साइड बेस होती है। सो हमारे पास आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बनेगा, और आर स्केयर का स्केयर ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने दोनों तरफ स्केयर रूट लिया। सो आर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर विच इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जी, अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने अगर मॉडुलस फाइंड करना है तो हम लोगों को सिंपली उसके रियल पार्ट का स्केयर और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर का सम करना है, और फिर उस सारे का स्केयर रूट करना है। सो दिस इज़ द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. So now we are defining distance between two complex number in argand plane. If p1 is a z1 is a point and z2 is a point, both are complex number. Z1 of x is x1 y1 and z2 of x is a and b, एक्स एंड वाई एंड ए एंड बी। सो पी एंड क्यू के अगर हमें अकॉर्डिंग डिस्टेंस चाहिए, सो दिस इज इक्वल टू कंपोनेंट वाइज स्क्वेयर्स का सम और स्क्वायर रूट। सो हम लोग करेंगे क्या कि वही रियल का ही सीन अप्लाई करेंगे, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस मेजर करना सीखा था रियल ज्योमेट्री में कि x1 माइनस x2, एक्स कंपोनेंट रियल में से माइनस करके उसका स्क्वायर कर लो, और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स में से माइनस करके उसका स्क्वायर कर लो, और सारे का स्क्वायर ले लो। सो दिस इज़ द यूक्लिडियन स्पेस, and in Euclidean space we can measure the distance between the 2 points of a plane is the formula according to this. So if you have queries about this page, you can coordinate. Now we will move to our next, which is polar representation of a complex number, very essential part of the complex analysis. We can coordinate the polar representation. Let's say I have defined the polar representation of a complex number of a point is not only used in complex or organ, but it will be also used in Cartesian plane. Cartesian plane भी हम लोग polar representation अप्लाई करते हैं किसी वेक्टर फॉर्म के लिए. एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ वेक्टर इन 2D. कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है 2D में. जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल v इज़ अ वेक्टर इन 2D 2 डायमेंशनल प्लेन, देन इट हैज़ 2 कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल x I plus y j, वेयर I and j आर द यूनिट वेक्टर्स ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस. I is a unit vector of x axis, j is unit vector of y axis. So this was also representation for a real plane. Representation of any number, the polar representation of any point in a plane, we will use the polar coordinates r and theta. Actually this concept was defined by this way. if I will describe. सबसे पहले हमारे पास एक प्लेन मिला, हमें एक प्लेन मिला इस तरह का, दो उसके एक्सिस है परपेंडिकुलर. हमें ये पता चला कि इस प्लेन के अंदर बहुत से पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को अप्रोच करने के कौन से तरीक़ेकार हैं. सबसे पहला जो तरीक़ाकार वो ईजाद हुआ कि हम लोगों ने बहुत सी लाइनें इस पर ड्रा कर ली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. तो हम लोगों ने लाइनों में मूव करना शुरू कर दिया, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, और ऐसे इस पॉइंट पर पहुँच गए. हम लोगों ने ट्रायंगल्स में मूव किया, तो हम लोगों के पास एक
कार्टेशियन प्लेन मिल गया जिसमें हम लोगों के पास लेंथ्स ही हैं, या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ है या वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, हम लोगों ने इस तरह मूव किया। एंड द न्यू कंसेप्ट फॉर दिस वाज अनदर कंसेप्ट, अगर हमारे पास एक प्लेन है तो हम लोग उसमें किसी पॉइंट को अप्रोच करना चाह रहे हैं, बजाय हम लोग लाइनें ड्रा करें, हम अपने ऑरिजिन के गिर्द सर्कल ड्रा करते रहते हैं, सर्कल ड्रा करते रहते हैं, करते रहते हैं, कभी ना कभी तो इस पॉइंट को पहुंच जाएंगे हम। तो जो पॉइंट इस तक पहुंचेगा उस पर हम लोग इस सर्कल की डिस्टेंस मैयर इसका एंगल मैयर कर लेंगे, एंगल मैयर करते करते उसका एंगल मैयर कर लेंगे और वो आपका थीटा बन जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, इसे हम लोगों ने मॉडुलस डिफाइन किया है, ये मॉडुलस आपका r बन जाएगा। सो r एंड थीटा आर टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन polar coordinates. So this is very much important topic. You can coordinate. This is your assignment. You need to understand and you need to find the best progress in this assignment. So we have studied the complex number, some basic properties, some key points, and some algebraic properties. So you can coordinate if you have some queries, and here we can quit the lecture. So best of luck and Allah Hafiz.